हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संतोष सर क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये दिसंबर 22 एग्ज़ाम्स में MCO 03 के पेपर में आया था। एंड आई होप जिस तरीके से अभी बहुत सारे जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ऑल द MCO 03 एंड MCO 22 स्टूडेंट्स, they are advised to practice this type of questions from probability. And let's try to understand the solution of this question. ये question है, find the probability of exactly 4 defective tools in a sample of 30 tools chosen at random by a certain tool manufacturing company. And यहाँ पे आपको दो पार्ट है इस क्वेश्चन के. One is you have to find the probability of 4 defective tools by using binomial distribution, and secondly Poisson distribution. And ये आपको चीज़ दिया हुआ है, probability of defective tools is 0.02. Okay, so let's start and let me explain you how you will going to solve this question. Okay, now first of all, in case of binomial distribution, you need to learn this formula, and the formula is C n by r into p to the power of r into q to the power of n minus r. So this is the formula, and आप लोगों ने पहले किया होगा क्लास 12 में जिनका मैथ्स था, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन. तो यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करनी है. n stands for the total number of attempts, total number of tools 30, and r is the defective tools probability. So we will put it here. So this is 30 and this is 4, then into p to the power of 4 and q to the power of 30 minus 4. So we will solve this. Now इसको solve करने के लिए 30 into 29 into 28 into 27 divided by 4 into 3 into 2 into 1. तो आपको याद आ गया होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का ये चीज़. एंड now here p is this probability of the defective tools, that is 0.02. so in place of p write 0.02, and the value of r this is 4 into. now the value of q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? we will subtract this 0.02 from 100. so you will get 0.98, I suppose, to the power of 30 minus 4, that is 26. So we will try to solve this. Okay, so ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी क्वाइट लार्ज. सो the value after solving this, the value becomes 27,405 into 0.02 को जब 4 times multiply करेंगे, I suppose 1 2 3 4 5 6 and 16. now इसकी जो वैल्यू है, ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल है जो बुक में दिया हुआ है, एंड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन में भी आपको इसकी वैल्यू दे सकता है. और अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अगर नहीं दी हुई है, तो जो इन्विजिलेटर हैं, यू कैन आस्क देम टू प्रोवाइड यू दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो वहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज 0.98 को 26 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा एग्ज़ाम टाइम ख़त्म हो जाएगा. तो इसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द टेबल, that is 0.59, the value of this 0.59. and now you can multiply all these numbers.
So you get 0.00259 approx. So this is in case of binomial distribution. Okay friends, अब देखते हैं how to find the probability of these 4 defective tools by using Poisson distribution. Now ये formula मैंने already यहाँ पे लिखा हुआ है Poisson distribution का, m to the power of r into e to the power of minus m whole divided by integral of r. So this is the formula. Now m stands for the mean of the probability distribution, and यहाँ पे आपको सबसे पहले मीन ही फाइंड आउट करना है m की वैल्यू. सो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n. यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टूल्स इज 30. आई मीन द फॉर्मूला इज n into p. सो दिस इज 30 into this probability of the defective in each tool is 0.02. So its value will be I suppose 0.6. So now we can put the values here. So m is 0.6 to the power of r, that is 4 into यहाँ पे e. Now e की वैल्यू जो है यहाँ पे कांस्टेंट होती है, एंड ये आपको जनरली क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाता है. इसकी वैल्यू नियरली अबाउट 2.7 अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं. 2.7 टू द पावर ऑफ माइनस 0.6. m की वैल्यू 0.6 है, एंड दैट इंटीग्रल ऑफ r कैन बी रिटन एज, जैसा कि यहाँ पे परमुटेशन में हम लोगों ने किया था, द सेम केस यू विल राइट हियर 4 into 3 into 2 into 1. सो नाउ यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एंड सॉल्व करने के लिए 0.6 को हम लोग 4 times मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट अबाउट दिस, इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड log. You have to take the help of log and anti-log. ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड लॉग के टेबल से ही निकलेगा, बिकॉज इसकी जो जो पावर है वो नेगेटिव है. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, तो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0.0296. कुछ ये वैल्यू आएगी 0.0296 अप्रॉक्स.